Hello everyone. So today we will be doing phylum chordata. So this is the last part of our chapter Animal Kingdom. Phylum chordata is actually a very huge topic because very huge phylum because this phylum itself contains so many categories. Also, we humans are a part of Mammalia, which lies in phylum chordata. So basically, these chordatas they contain four things. They have a notochord, they have a dorsal hollow nerve cord, a paired pharyngeal gill slits, and they have post-anal part. See in this diagram, it is very clearly explained that firstly they have a notochord, a nerve cord, gill slits, and post-anal part, which is the tail. So these are the characteristic features of a chordata, and these are the four characteristics which the chordata has, and the non-chordates don't have. The chordatas are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate, and they have organ system of organization. They have a post-anal tail and a closed circulatory system. Okay, now let's see the difference between chordates and non-chordates. So in case of chordates, the chordates have notochord, whereas the non-chordates don't have. Now, in chordates, the nervous system is dorsal, means it is present on the back side. See, in we humans also हमारा जो nerve system है वो पीछे के side पे है, हमारी spinal nerves and वो सब जो है वो पीछे के side पे है. Whereas in case of non-chordates, it is on the ventral, means front sides. Then the pharynx is perforated by a gill slits, but the gill slits are absent in case of non-chordates. Then the heart is ventral, means the heart is present in the front. Our heart is present on the front side, whereas if present the heart is on the back side in case of non-chordates. Then chordates have a tail, whereas non-chordates don't have. Okay, so basically this chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Urochordata is also called as Tunicata. So basically the Urochordata and the Cephalochordatas are called as protochordates, means the old and the primitive type of chordates. They are exclusively marine. In urochordates, the notochord is present only in the larval tail. In urochordata, only the larva, the baby of the urochordates, has the notochord, whereas in cephalochordates, it has the notochord throughout its life. Some examples of urochordata are Acidia, Sulpa, and Doliolum. How can you remember these examples of urochordata? Dash. Doliolum, Acidia, Sulpa. And of cephalochordate is Branchiostoma. Now, let's see the third subphylum, which is the vertebrata. So basically vertebrata is that subphylum which contains notochord during the embryonic period. मतलब हमारे पास तब notochord थी जब हम अपने embryos में थे, ठीक है, और जब हम बड़े हुए तो ये notochord रिप्लेस हो गई एक कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रेट कॉलम में. यानी कि हमारे पास वर्टिब्रेज है ना, कितने सारे वर्टिब्रेज होते हैं ह्यूमन में, तो वो जो वर्टिब्रेज थे जब हम एम्ब्रियो थे ना तो तब वो नोटोकॉर्ड्स थे, पर अब वो वर्टिब्रेज है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज़ के लिए कि जो सारे वर्टिब्रेटास है वो कॉर्डेटास नहीं है, पर जो सारे वर्टिब्रेटास है वो कॉर्डेटास है, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो एक पार्ट है ना कॉर्डेट्स के, इजंट इट. अब वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें 2, 3, 4 चैम्बर्स हो सकते हैं. एक्सक्रीशन के लिए दे हैव किडनीज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच इज़ द फीट्स विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ फिन्स और लिम्स, यानी फीट, ठीक है. तो चलो हम देखते हैं कि वर्टिब्रेटा को कैसे डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अग्नाथा
एंड गनाथोस्टोमाटा। तो जिनके पास जॉज नहीं है वो है गनाथा, जो कि है साइक्लोस्टोमाटा, और जिनके पास जॉज है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं पाइसिस, आपकी फिशेस एंड टेट्रापोडा, जिनके पास लिम्ब है, लिम्ब यानी पैर, हड्डी, ठीक है। तो फिशेस में है कॉन्ड्रेथाइस एंड ऑस्किथाइस, और टेट्रापोडा में आ जाता है एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमल्स, एंड वी आर मैमल्स। तो चलो पहले तो हम देखते हैं साइक्लोस्टोमा के बारे में। तो साइक्लोस्टोमा जो है ये एक्टोपैरासाइट्स है फिशेस पर। They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for the respiration. उनके पास एक sucking circular mouth है without jaws. Okay, this is very important. Jaws तो नहीं है, पर एक sucking circular mouth ज़रूर है, ठीक है। बेसिकली इसका नाम भी इसी टाइप से पड़ा है, साइक्लो का मतलब सर्क्यूलर और स्टोमा का मतलब माउथ, ठीक है। और इनकी बॉडी पे स्केल्स और पेयर्ड फिन्स है, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स और कार्टिलेजिनियस, क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, और ये मराइन है, और फ्रेश वाटर में भी ये मतलब माइग्रेट करके चले जाते हैं। और स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद, एक्चुअली ये मराइन है, लेकिन स्पॉनिंग का मतलब ब्रीडिंग के लिए ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, और ब्रीडिंग के बाद यानी स्पॉनिंग के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर ब्रीडिंग इन्होंने कहाँ पे की है, इन्होंने फ्रेश वाटर पे की है ब्रीडिंग, ठीक है। बेसिकली देखिए ये जो साइक्लोस्टोमा है ये रहते ओशन में है, ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाके ब्रीड करते हैं, फिर वहाँ जाके मर जाते हैं, फिर जो उनके लार्वा है वो वापस ओशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि भाई उनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, और ये इनके पास सकिंग सर्कुलर माउथ है, ठीक है। देयर बॉडी डोंट हैव एनी स्केल्स, ठीक है। डिवॉइड का मतलब दे डोंट हैव, ठीक है। और इनका जो क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनियस है, सर्कुलेशन इनका क्लोज्ड है, ठीक है। एंड ये स्टोरी भी याद रख लेना जो मैंने बताई आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन एंड माइक्सिन, पेट्रोमाइजन एंड माइक्सिन। सो दिस फोटो इज ऑफ पेट्रोमाइजन फर्स्ट वन, एंड दिस, ये तो कॉन्ड्रिक्टाइस की फ़ोटो है, बाद में बताती हूँ आपको। ओके, तो हमने साइक्लोस्टोमा कर लिया, अब हम करते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टिथाइस। तो चलो मैं आपको इसको डिफ्रेंसिएशन के साथ बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टिथाइस कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, पोइकिलोथर्मस, ये वर्ड आएगा एनसीईआरटी में, तो आप स्पेलिंग की टेंशन मत लीजिए, आप इसका मतलब समझ लीजिए कि कोल्ड ब्लडेड बेसिकली होता क्या है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि कुछ लिजर्ड्स वगैरह होती है, एंड और भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे या फिर सर्दियों के टाइम पे हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, उनकी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ही है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो जो कॉन्ट्राथाइज है ना उसके पास एक वेंट्रल माउथ है, इसका माउथ जो है सामने की साइड पे है इस तरीके से, ठीक है। एंड ऑस्किथाइज में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, पर इसका माउथ जो है टर्मिनल है इस टाइप से, ठीक है। ये है इसका माउथ कॉन्ड्रोथाइज का, एंड ऑस्किथाइज का माउथ है ऐसा, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्ड्रोथाइज जो इनकी गिल स्लिट्स है ना उस पर अपरक्यूलम कवर नहीं होता है। अपरक्यूलम एक्चुअली एक गिल का कवर होता है, पर ऑस्किथाइज में इनकी गिल स्लिट्स पे अपरक्यूलम का कवरिंग है। ये मरीन में रहते हैं, और ये मरीन और फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनके पास कार्टिलेजिनियस स्केलेटन है, इनके पास बोनी स्केलेटन है, ठीक है। देन इनका जो एयर ब्लैडर है ना वो कंटिन्यूस स्विमिंग को, मतलब बेसिकली इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, एंड अब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना होए, डूबे ना। बल्कि इनके पास जो है, इनके पास आपका
ऑस्टिक थाइस के पास एयर ब्लैडर है जिससे अच्छी सी बॉयंसी रेगुलेट हो जाती है। इनके टीथ जो है वो प्लकाइड स्केल के हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इनकी स्किन होती है ना उस पर कवर होता है साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल। ओके, चलिए अब हम इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो यस, तो कॉन्ड्रिथाइज होते हैं मरीन, इनके पास होता है कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, और ऑस्टिथाइज के पास होता है बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड है, नोटोगॉर थ्रू आउट परसिस्टेंट है, गिल्स पे अपर्क्यूलम की कोटिंग नहीं है, ठीक है। स्किन पे प्लेकॉइड स्केल्स है, ठीक है, बेसिकली टीथ पे, और जॉज बड़े पावरफुल होते हैं इनके, और ये प्रेडेशियस है यानी प्रेडेटर्स होते हैं। एयर ब्लैडर तो है नहीं, इसलिए इनको स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली ताकि ये डूबे ना। फिर इनके पास 2 चैम्बर का हार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है। और किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी हो जाते हैं जैसे कि टॉर्पीडो, और कोई कोई के पास तो पॉइजन स्टिंग भी होती है जैसे कि आपका ट्राइगन, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड है, इसका मतलब कि ये पोकिलोथर्मस है, मैंने बताया था ना आपको पहले भी बताया था, तो ये स्पेलिंग है पोकिलोथर्मस की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस तो भाई इसके सेपरेट है, बेसिकली सेक्सेस इसके सेपरेट है, सेक्सेस ऑस्टिथाइज के भी सेपरेट है, ठीक है, दोनों के ही सेक्सेस सेपरेट है। अब ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट है कि जिनका मेल पेल्विक फिन्स है ना उसके पास होते हैं क्लैस्पर्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये होते हैं विविपारस, वेरास जो ऑस्टिथाइज होते हैं वो होते हैं ओविपारस, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैं बताना भूल गई शायद, जो ये कॉन्ड्रिथाइज है ये है विविपारस और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि ऑस्टिथाइज का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और ये ओविपारस है, अंडे वाली, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्कोलियोडन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफ्टफिश, कार्कारोडन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगरे। ट्राइगन हमने अभी वर्ड पढ़ा था, इसके पास होती है पॉइजन स्टिंग, ठीक है। वापस कर देते हैं एक बार एग्जाम्पल्स है इसके। स्कोलियोडन, प्रिस्टिस, कार्कारोडन, ट्राइगन, स्कोलियो। देखो सब के आखिरी में डॉन 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 आ रहा है ना, तो आप उससे रिमेम्बर कर सकते हैं। स्कोलियोडन, STCP, स्कोलियोडन, ट्राइगन, कार्कारोडन, प्रिस्टिस, स्कोलियोडन, कार्कारोडन, ट्राइगन, प्रिस्टिस। स्कोलियोडन है डॉग फिश, प्रिस्टिस है सॉफिश, कार्कारोडन है ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन है स्टिंगरे। स्कोलियोडन है डॉग फिश, प्रिस्टिस है सॉफिश, कार्कारोडन है ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन है स्टिंगरे। स्कोलियोडन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कार्कारोडन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगरे। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑस्टिथाइज, ठीक है। इसमें तो दोनों आ जाते हैं, मरीन फ्रेश वाटर, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, माउथ इनका टर्मिनल है और अपर्क्यूलम कवर्ड है, एयर ब्लैडर है जिससे बोयंसी का रेगुलेशन हो जाता है, स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल से। तो अभी हमने देखा था कि जो कॉन्ड्रिथाइज है उनके स्किन टफ है, उसके पास प्लेकॉइड स्केल्स है, इसके पास साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स है, ठीक है। इसका भी हार्ट जेट 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल है दूसरा वेंट्रिकल, कूल ब्लडेड है दोनों, सेक्सेस इसके भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन उसका इंटरनल था, इसका एक्सटर्नल है, वो विविपारस था, ये ओविपारस है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मराइन के है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। 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 देख सकते हैं ना, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। फ्रेश वाटर है लाबियो रोहू, कटला,
क्लारियास, एक्वेरियम एंड टीरोफाइलम। ठीक है, तो लाबियो रोहू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहू का नाम लाबियो है। देन क्लारियाज है मगर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्लारियाज मगर ही रख लेते हैं, इससे आसान रहेगा। एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम एंजल फिश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्फीबिया के बारे में। तो देखो गाइस, अब हमारे पाइसेस हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे टेट्रापोडा। याद है टेट्रापोडा क्या होता है कि भूल गए? टेट्रापोडा वो क्लास होती है जिसके पास लिम्स होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स और मैमल्स। तो चलो एम्फीबिया पढ़ते हैं। एम्फीबिया का तो मतलब पता ही होगा, जो 2 लाइफ जीते हैं। ठीक है, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, टेल किसी किसी में प्रेजेंट होती है, और एम्फीबियन स्किन जो होती है ना मॉइस्ट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनकी स्किन है मॉइस्ट है, इस पर कोई स्केल वेल नहीं है। फिर इनकी आइज़ के पास है आईलिड्स। ठीक है, और असली कान तो है ही नहीं, कानों की जगह है टिम्पैनम। क्या है? टिम्पैनम है। देखो भाई, टिम्पैनम देखो, ना तो एम्फीबिया के पास असली कान है, ना ही रेप्टाइलिया के पास असली कान है, दोनों के पास है टिम्पैनम। ठीक है, एलिमेंटरी कनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन टू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड एज क्लोका। ठीक है, जो कि बाहरी इससे ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स, स्किन से होता है। हार्ट है 3 चेम्बर्ड। ठीक है, हमने देखा था ना जो पाइसेस है उनके हार्ट 2 चेम्बर्ड है। उसके पास उनके पास होता है 1 ऑरिकल 1 वेंट्राइकल। इसके पास है 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्राइकल। ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है इसकी बॉडी को, मतलब टेम्परेचर पे। सेक्सेस तो भाई सेपरेट है। देखो सेक्सेस जो है ना, सेक्सेस चारों के सेपरेट है, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स, मैमल्स, चारों के। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली सबका इंटरनल है, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स एक्सेप्ट दिस एम्फीबिया। ठीक है, ये ओविपारस है, वही सेम, बस यही ओविपारस है, बाकी सब तो विविपारस है टेट्रापोडा के। ठीक है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो वही है। फिर एक्चुअली सभी ओविपारस है, बस मैमेलिया विविपारस है। हाँ, और सबका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, बस इसका ही इनडायरेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, बफो टॉड, राना फ्रॉग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राना को तो याद ही रख लेना, बफो टॉड। हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा, सैलेमेंडर मतलब गिरगिट। ठीक है, फिर ये क्या है? एक थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, लाइमलेस, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, बफो टॉड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा, सैलेमेंडर, एक थायोफिस लिम्बलेस फ्रॉग। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखो, ये राना है, ये आपका फ्रॉग है, फ्रॉग को बोलते हैं राना। ऊपर बनी है गिरगिट की फोटो, गिरगिट क्या बोलते हैं? सैलेमेंडर। चलो पढ़ते हैं रेप्टाइल के बारे में। ओके, यस, रेप्टाइल के एग्जाम्पल्स देखेंगे पहले। चलो ठीक है, ये है हमारे रेप्टाइल्स। ये पहली वाली कमीलियन तो पता ही होगा। फिर ये है क्रोकोडाइल, जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइलस। दिस इज स्केलन टर्टल। ठीक है, और ये है नाजा बोलते हैं एक्चुअली इसको। ओके, नाजा आपका कोबरा है, ये बेसिकली कॉमन नेम इसका। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो है इनको चलना आता नहीं। ठीक है, दे आर क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, चलने के लिए क्रीप क्रॉल करते हैं ये लोग ऐसे। ओके, नाउ ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉन्फाइंड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनकी बॉडी कवर्ड होती है स्केल्स और स्क्यूट्स से। ठीक है, इनके पास भी कोई कान नहीं है, टाइपैनम है, नकली कान। ठीक है, लिम्स अगर हो तो 2 हो।
ठीक है, 2 पेयर में हो, मतलब हार्ट जो है ये या तो 3 चैम्बर्ड हो, बेसिकली 3 चैम्बर्ड रहता है, पर एक एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, ये होते हैं पोकिलोथर्म्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था। पोकिलोथर्म्स वो होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनके बॉडी मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्नेक्स और लिजार्ड है ना, ये अपनी जो स्किन है उसको शेड करती है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, सेपरेट सेक्सेस तो भाई चारों के सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन सबका इंटरनल है एक्सेप्ट एम्फीबिया। ओवी पैरा से है, सब ओवी पैरा से एक्सेप्ट मैमेलिया। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, सबका डायरेक्ट है एक्सेप्ट एम्फीबिया। एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टर्टल्स, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, बेसिकली गिरगिट, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर का वही है ओके, हेमीडैक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक्स में आ जाता है नाजा, कोबरा, बैंगरस क्रेट एंड विपेरा विपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। चलो एक और बार कर लेते हैं। किलोन टर्टल है, ठीक है, मैं अब एग्जाम्पल जो है ना टफ वाले बढ़ाती हूँ। एक तो किलोन टर्टल, ओके, देन कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, हेमीडैक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, विपर, विपेरा विपर, बैंगरस क्रेट, नाजा, कोबरा। किलोन टर्टल, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, हेमीडैक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, बैंगरस क्रेट, विपेरा विपर। ओके, चलो एव्स पढ़ते हैं। एव्स आपके पंछी, बर्ड्स, ठीक है, इनके पास होते हैं फेदर्स, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच, बीक है इनके पास। फोलिम्स जो है मॉडिफाई हो जाती है विंग्स में। हाइंड लिम्स यानी पीछे के लिम्स में होता है स्केल एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग। ठीक है, स्किन पे कोई ग्लैंड्स नहीं एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। ठीक है, और इनका जो एंडोस्केलेटन है इट इज़ बोनी एंड लॉन्ग बोन्स है इनके पास जो कि हॉलो होते हैं। ठीक है, हॉलो विथ एयर कैविटीज, न्यूमैटिक। ठीक है, ताकि मतलब उड़ने के लिए मदद होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेम्बर्स है, ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट है कि कौन से चेम्बर्स है, द क्रॉप एंड गिजार्ड, ये है। हार्ट इनका कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड है। ठीक है, तो देखो हार्ट जो था वो रेप्टाइला का 3 चेम्बर था, एम्फीबिया का भी 3 चेम्बर था। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, रेप्टाइला में कौन सा वो था जिसका मतलब एक्सेप्शन कौन था रेप्टाइला में जिसके पास 4 चैम्बर था? यस, क्रोकोडाइल था वो। ठीक है, जिसके पास 4 चैम्बर था। बाकी पूरे रेप्टाइला के पास 3 चैम्बर है। ठीक है, और एम्फीबिया के पास भी 3 चैम्बर ही है। एंड पाइसेस आपके फिशेज जो हमने पढ़ा था ना, कॉन्ड्रोथाइज एंड ऑस्किथाइज, उनके पास 2 चैम्बर्ड है। ठीक है, इसके पास तो 4 चैम्बर्ड आ जाता है। ये भाई वार्म ब्लडेड है भाई, इसको कंट्रोल है, ये रेगुलेट कर सकती है अपना बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? होमोथर्मस। ओके, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, किधर क्या लंग्स। ठीक है, एंड इसके और एक फीचर है कि जो ये इनकी एयर सैक्स होती है ना, ये लंग्स में कनेक्टेड होती है रेस्पिरेशन के लिए। सेक्सेस इसकी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये ओवीपैरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। चलो एग्जांपल्स करते हैं। कोरवस क्रो, कलम्बा पिजन, सिटाक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पेंगुइन और पीजन में बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। ठीक है, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर। नेफ्रॉन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2021 में आपका नीच में। ठीक है, तो चलो वापस करते हैं। कॉर्वस क्रो, कलम्बा पिजन, सिटाक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर। ठीक है, कोलम्बा पिजन,
Struthio ostrich, Aptenodytes penguin, Columba pigeon, Psittacula parrot, Struthio ostrich, Aptenodytes penguin. ठीक है, क्लियर? मैमालिया लास्ट। मैमालिया हम है मैमल्स। क्या खासियत है? एक तो मैमली ग्लैंड है हमारे पास, दूसरा हमारे पास बाल है गाइस, वी हैव हेयर्स। ठीक है, तो चलो, दे हैव 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying, whatever। ठीक है, देन हमारे पास हेड्स है। हेड्स कहाँ लिखा है? ये देखिए, ये पजेस हेड्स। ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल एक्चुअल वाले एयर्स है जिसको बोलते हैं पिन्ने। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है। हम है होमोथर्मस, यानी कि हम है वार्म ब्लडेड। हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं अपनी पसंद से। ठीक है, रेस्पिरेशन लंग्स से है। ठीक है, एव्स का भी लंग से ही था। ठीक है ना, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जो है ना, एव्स का और मैमल्स का लंग से होता है। एम्फीबिया का होता है लंग्स, गिल्स, स्किन से। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विवी पैरासिट इन्हें अंडे वंडे ले नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। पहले तो ओवी पैरस भी है कुछ कुछ, यानी जो अंडे ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्निथोरहाइनकस, 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 ऑर्निथोरहाइनकस। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेसिकली रहता नहीं है ना, मतलब मैमल्स में वेवी पैरस ही है। क्यों? जिसके पास ओवी है, अंडे वाला एक ही है, प्लैटीपस, दैट इज ऑर्निथोरहाइनकस, ऑर्निथोरहाइनकस, ऑर्निथोरहाइनकस। चलो, मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक, कैमिलस camel, macaca monkey, ratus rat, canis dog, felis cat, elephas elephant, equus horse, delphinus common dolphin, Balaenoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Again, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, then macaca monkey, Canis dog, Felis cat, then Balaenoptera blue whale. ठीक है, चलो टफ वाली करते हैं। ओवीपारस का ऑर्निथोरहाइनकस, 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 ऑर्निथोरहाइनकस। अगेन, चलो, मैक्रोपस कैंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, macaca monkey, canis dog, felis cat, delphinus common dolphin, Balaenoptera blue whale, Balaenoptera blue whale, ऑर्निथोरहाइनकस ओवीपारस है। ठीक है, मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, इक्यूअस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, Balaenoptera ब्लू व्हेल। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये जो चार्ट टेबल है, आई हैव completed my chapter। ओके, एंड ये जो टेबल है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करवा दिया था। तो थैंक यू सो मच, बाय।